شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس الطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھائی کا انتقال ہوا تو آپ اپنے بھائی کے جنازے میں روتے ہوئے نکلے اور فرما رہے تھے، خدا کی قسم میری آنکھیں اس وقت تک ٹھنڈی نہ ہوں گی جب تک مجھے یہ نہ معلوم ہو جائے کہ میرا اپنا ٹھکانہ کون سا ہے۔ افسوس اس بات کو میں جیتے جی کبھی بھی معلوم نہ کر سکوں گا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سیدنا امام مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بھائی کے غم میں نہیں رو رہے تھے بلکہ بھائی کی موت نے اپنی موت کی یاد دلا دی تھی، اور پہلے کا دور جو تھا وہ اسی طرح کا تھا کہ کسی کے جنازے کو دیکھ کر لوگ اپنے جنازے کے تصور میں گم ہو جاتے اور بے قرار ہو جاتے۔ چنانچہ بزرگ کا واقعہ ہے، آپ جنازے میں جاتے تو یہ معلوم نہ کر پاتے کہ تعزیت کس کے ساتھ کریں، کیونکہ سب کے سب غمگین ہوتے، یعنی اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے ہر ایک رنجیدہ ہوتا تو نو وارد یہ بات معلوم کرنا اس کے لیے دشوار ہوتا کہ اس میت کا ولی کون ہے، اس میت کا وارث کون ہے کہ جس سے تعزیت کا اظہار کیا جائے۔ سبھی بھائیوں، اللہ تعالی آپ سب کو نزا کی سختیوں سے محفوظ رکھے۔ جنازہ ضرور اٹھے لیکن مدینے کی گلیوں میں جھومتا ہوا اٹھے، اور زہ نصیب آقا کی گلیوں میں گھومتا ہوا جنت البقیع میں سپرد خاک کیا جائے، اور یہ دعا مجھ گناہگار کے حق میں بھی مدینے کی دھول کے صدقے میں قبول ہو جائے، اور ہم سب کو ایمان و عافیت کے ساتھ گنبد خضرا کے سائے میں موت نصیب ہو۔ تو جنازہ جو ہے یہ ایک عقل مند کے لیے بہت بڑی عبرت کا سامان ہے۔ کسی کا جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھ کر یہ احساس دل میں پیدا ہو جانا کہ جس طرح آج یہ نہایت ہی بے کسی کے عالم میں کفن میں لپٹا ہوا ہے،
हरकत नहीं कर पा रहा और लोग इसे कंधों पर लादे हुए वीरान कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े हैं। इसी तरह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो वक्त आएगा कि मुझे भी इसी तरह लोगों के कंधे पर सवार होकर जानिबे कब्रिस्तान कूच करना है। तो जो अक्लमंद है उसके लिए जनाजा बहुत बड़ा इबरत का सामान है, एक मुदल्लल बयान है, यानी एक तरह से उसको जैसे प्रैक्टिकल करके बताया जा रहा है कि इसी तरह तुझे भी ले जाया जाएगा। लिहाजा जनाजे में जो अक्लमंद होते हैं या पहले होते थे, अब तो शाज़ो नादर ही कोई ऐसा शख्स हो जो जनाजे में किसी के जनाजे में गमगीन हो जाए, यानी जिसको जनाजे के पिंजरे में ले जाया जा रहा है उससे कोई उनसियत या वाकिफियत न हो, सिर्फ अपनी मौत को याद करके गमगीन हो जाए। वरना लोग गमगीन तो होते हैं मगर वो मरने वाले की मोहब्बत में होते हैं, अपनी आखिरत की फिक्र में नहीं होते। तो अब ऐसे अक्लमंद कम है, अलबत्ता पहले हुआ करते थे। हजरत सैयदना साबित बुनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े वलीउल्लाह हुए हैं, वो फरमाते हैं हम जनाजों में शिरकत करते हैं तो हर एक मुंह पर पल्लू डाले रोता हुआ दिखाई देता है। ये उस दौर की बात है। जनाजे में जब किसी की शिरकत की जाती थी तो जनाजे का जितना भी मजमा होता था, हर फर्द अपने मुंह पर पल्लू डाले, चादर डाले, रुमाल रखे रोता हुआ नजर आता था। यानी ये जनाजा जो था ये हर एक को रुला देता था कि जिस तरह आज मेरा रिश्ता हयात मुनक़ते हो गया, जिस तरह दुनिया की ये रंगीनियां मुझसे छूट गई, जिस तरह ये सरसब्ज़ो शादाब बागात और लेलहाते खेत और लजीज खाने और मीठे पानी के उबलते हुए चश्मे और खुशनुमा रंगीन नजारे छोड़कर अपने रिश्तेदारों, अपने प्यारों, अपने लाडलों, अपने अजीजों और अपने चाहने वालों से मुंह मोड़कर मैं एक होलनाक सन्नाटे और वीरान कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा हूं। ऐ मेरा जनाजा उठाने वालों, ऐ मुझे कंधा देने वालों, अन करीब तुम्हें भी ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और मेरी तरह दुनिया के तमाम असबाब से मुंह मोड़ना पड़ेगा। गोया वो जनाजा क्या है, एक खामोश मुबल्लिग है जो अपने इजहार से, अपने यूं कहिए कि ज़बाने हाल से एक बहुत जबरदस्त गमनाक और रिक्कत अंगेज बयान कर रहा है। बल्कि हदीस पाक में तो आता है वाकई वो बयान कर रहा है। सुनाते हदीस में ये मजमून मौजूद है कि जब किसी मय्यत को चारपाई पे रख के, पहले चारपाई पर अब भी देहातों वगैरह में चारपाइयों को उठाते होंगे, अब इसका वो पिंजरा बना लिया है, बातें की है। तो मय्यत को जब चारपाई पे रख के तो मय्यत यानी वो मरने वाला बोल पड़ता है और कहता है, अरे मेरे भाइयों, अरे मेरा जनाजा उठाने वालों, जिस तरह दुनिया मुझसे खेलती रही कहीं तुमसे न खेले, आगाह हो जाओ। जिस तरह मुझे दुनिया ने धोखा दिया कहीं तुम इसके धोखे में न पड़ जाना। मेरी खून पसीने की कमाई मेरे वुरसा तकसीम कर लेंगे, जबकि कर्ज खा यानी जिनका कर्जा मेरे सर पर है, जिनके हुकूक मेरे सर पर हैं, वो कियामत के रोज मुझसे मुताला करेंगे और तुम लोग भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। तो ये जनाजा खामोश मुबल्लिग है। एक तरह से तो उसका देखना ही एक बहुत बड़ी मतलब इबरत है और वो बोलता भी है। हदीस शरीफ के मुताबिक उसकी आवाज जिन्नात और इंसान के सिवा दूसरी मखलूक चाहे तो सुन सकती है, हम नहीं सुन। इसमें भी मसलहत है, अगर इंसान सबके सब सुनने लग जाए तो उनका जीना मुश्किल हो जाए। तो हदीसों में जो आ गया वो हक है, कसौटी भी है कि अब कोई नादान अपनी अक्ल को दखल देकर इस पर वसवसों का शिकार होता है या आमन्ना और सद्दकना कहकर सरे तस्लीम खम कर देता है। तो बहरहाल मेरे इस्लामी भाइयों, जनाजा ये एक खामोश मुबल्लिग है और जनाजे को देखकर इबरत हासिल करना ये अक्लमंदों, खिरदमंदों, बाशऊरों और खाइफीन का तरीका है। तो पहले के लोग जनाजे में जब जाते
तो उसे देखकर इबरत हासिल किया करते। मगर हाय अफसोस, अब जनाजे में लोग हंसते हुए जाते, खुश गप्पियां करते हुए जाते। अब जनाजे में दुनिया की बातें होती हैं, पुरतपाक तरीके पर मुलाकातें होती हैं। अब जनाजे में मरने वाले ने क्या छोड़ा, इसकी फिक्रें, इसके तस्किरे होते हैं। मरने वाले के साथ क्या होगा, इसकी किसी को भी नहीं पड़ी। हाँ, इनकी औलाद से लोग जरूर हमदर्दी करते हैं कि अब बच्चे बेचारे यतीम हो गए, बेचारे की बीवी बेवा हो गई, अरे अरे सारी बेटियां हैं, एक भी बेटा नहीं है, ये भी कोई मरने का वक्त था, बेचारों को रोता हुआ छोड़कर ये चल दिया, नऊजुबिल्लाह। ये देखिए तरह तरह की लोग मतलब बकवासें भी करते। और ये तो आम दस्तूर है, लोग बोलते हैं इसका मरने का टाइम नहीं था। यानी सारा तुमको पता है कि मरने का टाइम कब होता है, तो ये बोलते हैं कि इसका मरने का टाइम था, ये कोई मरने का वक्त है। ये हर बार में ये वक्त की बेमाइश लोग करते हैं। न जहालत इतनी है कि शैतान उनकी जबान पर कलाम करता है। मसलन कोई दाढ़ी रख ले तो उसको ये लोग बोलते हैं ये तेरा दाढ़ी रखने का टाइम है, ये तेरा इमामा बांधने का टाइम है, ये तेरा ये करने का टाइम है, ये तेरा वो करने का टाइम है। तो टाइम कब आएगा ये इनको क्या पता। ऐसा कहने वाले कई लोग जो इस खुशफहमी में रह के अभी टाइम नहीं हुआ इबादत करने का, अभी टाइम नहीं हुआ सुन्नतें अपनाने का, अभी वक्त नहीं आया तौबा करने का, और अचानक मौत का शिकार होकर अंधेरी कब्र में पहुंच जाते हैं। ऐसे कई लोग चले। लेकिन अफसोस कि दिन इतना सख्त हो गया कि इबरत अब नहीं हो रही। एक बुजुर्ग कहीं से गुजर रहे थे, जनाजा रखा हुआ था और लोग उस मय्यत पर रो रहे थे। तो आपने इरशाद फरमाया कि लोगों तुम इस मय्यत को रो रहे हो, हालांकि ये मरने वाला 3 कठिन तरीन मनाजिल से गुजर चुका। ये मरने वाला मलकुल मौत सैयदुना इज़राइल अलैहिस्सलाम की भयानक सूरत देखने के मरहले से गुजर चुका, तुम्हें गुजरना बाकी है। ये मरने वाला नज़आ की तकालीफ से गुजर चुका, तुम्हें गुजरना बाकी है। ये मरने वाला खातिमा कैसा होगा इस खौफ से गुजर चुका, तुम्हें गुजरना बाकी है। तुम इस मय्यत पर रो रहे हो, तुम्हें तो अपने आप पर रोना चाहिए कि मेरा अंजाम क्या होगा। तो हकीकत यही है कि पहले के लोग इस तरह की मदनी सोच रखते थे, मगर अफसोस कि आजकल ये सोच मादूम होती चली जा रही है। हालांकि अमवात की कसरत गालिबन पहले से बढ़ चुकी है। यानी अब तासुर यह दिया जा रहा है कि साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी दवाएं अब ईजाद हो गई और बड़े बड़े ऑपरेशन अब कर दिए जाते हैं और बीमारियों का सद्देबाब हो रहा है और ये तरक्की हो गई, वो तरक्की हो गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अमवात की शरह बढ़ती चली जा रही है। अगर दवाएं ईजाद हो गई तो ग़िज़ाएं इस कदर नाकिस हो गई हैं कि जिसकी वजह से बीमारियां एकदम पकड़ लेती। इसी तरह दूसरे असबाब ऐसे हो गए जिसकी वजह से बीमारियां एकदम पकड़ लेती हैं। इन गाड़ियों को ले, जो गाड़ियां चलती हैं, इसकी वजह से जो धुआं निकलता है, ये धुआं इतना मुज़िर है कि जिसकी हद। इस धुएं की एक बहुत बड़ी तह फजा में कायम हो रही है, जो बहुत ही सख्त बीमारियों का बेशखेमा बीमारियों में है। तरह तरह के सिगरेट इस वक्त नजर आ रहे हैं। सिगरेट के जरिए आम डॉक्टरों का तासुर यही है, अखबारात में मज़ामीन आते हैं कि सिगरेट के जरिए फेफड़ों का कैंसर होने का कभी अंदेशा। यहाँ तक कि सिगरेट कोई पी रहा हो, दूसरे को धुआं पहुंचता है तो उसके लिए भी ये नुकसानदेह है। बल्कि अब चूंकि आबादियां बढ़ती जा रही हैं तो पहले असली खाद होती थी, अब आर्टिफिशियल खाद इस्तेमाल की जाती है। खुद आर्टिफिशियल खाद की वजह से जो फ्रूट पैदा होता है, जो सब्जियां पैदा होती हैं, इसमें और कुदरती खाद वाली सब्जियों की ग़िज़ाइयत में, एनर्जी में फर्क। और इस आर्टिफिशियल खाद की वजह से पैदा होने वाली वो सब्जियां या जो भी मतलब मेरे अनाज वगैरह है, इसमें भी मतलब बीमारियों के उनसर होते हैं। यहाँ तक कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें यहाँ तक था कि आम उगाने के लिए जो मतलब केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं, उसके जरिए भी कैंसर के असबाब बनते हैं। अब आम हमारा पसंदीदा फल है, लेकिन अब उसके हालात ऐसे कर दिए कि पैदावार बहुत ये लोग मतलब आर्टिफिशियल तरीके पर बढ़ाते हैं, खूब कमाते हैं, लेकिन इन चीजों में या इस तरह पहले दरख्तों में पकते थे फल, अब मतलब केमिकल्स के जरिए पकाते हैं। इसकी वजह से भी बड़े मसाइल खड़े होते हैं, बहुत नुकसानात और मुज़िर असरात पैदा होते हैं। तो साइंस ने दवाएं अगर ईजाद कर भी ली तो अमराज भी इस कदर ईजाद होते जा रहे हैं कि पनाहे खुदा।
पहले लड़ाई होती थी तो पथराव होता था, लाठियां चलती थी, ज्यादा से ज्यादा चाकूबाजी हो जाती थी, और कभी कभार इक्का दुक्का कत्ल हो जाता तो वो शोर मच जाता था। अब साइंस ने तरक्की कर ली, इंसान चांद पर पहुंच गया तो एक पटाखा फोड़ा, बंदा सीधा लुढ़क गया, एक धमाका किया तो लाशों के, इंसानी जिस्मों के चिथड़े उड़ा दिए। तो दुनिया बहुत तरक्की कर रही है, तो इसलिए मतलब साइंस ने तरक्की कर ली, बहुत ही तरक्की कर ली, तो मौत भी मतलब जोर शोर से अब आ रही है और लोग धड़ाधड़ मर रहे, और गोली का निशाना बनकर लाशों के मतलब अंबार लग गए। पहले तो एक आध कत्ल होता था तो लोगों के कान खड़े हो जाते थे और बड़ा चर्चा होता था। अब आए दिन ना जाने कितने कत्ल होते हैं, और कत्ल भी ज्यादातर नौजवान होते हैं। अब मतलब हालात ऐसे हो गए कि अक्लो खिरद ऐसा लगता है कि बिल्कुल कुंद होती जा रही है, इबरत के दरवाजे ऐसा लगता है जैसे बंद किए जा रहे हों। हम पर शैतान ने इस कदर मतलब यानी कि वो असर किया कि बंद हो गए। पहले कोई एक अगर मौत से हमकिनार होता तो बुजुर्गान दीन और नेक लोग उससे बड़ी इबरत हासिल करते थे, और अब किसी की मौत से इबरत का कोई मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता, पता ही नहीं। पांचों टाइम अच्छा खासा बंदा नमाज पढ़ेगा, जब घर में मैयत हो गई तो नमाजें कदा होंगी, भाग दौड़। रमजान के रोजे नहीं रखेंगे, रमजान में अगर मैयत हो गई तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे। यानी रमजान में अगर किसी के घर मैयत हो गई तो ऐसे बदनसीब लोग मिलेंगे कि वरना रोजे रखते भी थे तो अब मैयत हो गई, भाग दौड़ की वजह से रोजा उनका छूट जाएगा। इबरत नहीं है किसी मरने वाले के मामले में। और अगर कत्ल की वारदात है तो इबरत क्या, वो तो बिल्कुल गुस्सा, और उसके जनाजे में भी हंगामे है, तो मार कुटाई है, तो गाली गलोच है, और इंतकाम भी ऐसा कि नस्लन बादा नस्लिन, इंतकाम की वजह से बंदा एक दूसरे को मार रहा, और मुसलमानों में ये सब कुछ हो रहा है। ये सब अजीबो गरीब बातें हैं। तो बहरहाल भाइयों, हम कुछ भी करें, इबरत हासिल करें या ना करें, मौत पीछा किए आ रही है और अनकरीब हमें लेकर चल देगी। लिहाजा जब भी किसी का जनाजा उठता देखो, कोशिश करो कि काश अपना जनाजा याद आ जाए। किसी की मौत की खबर सुनकर ऐ काश, इसलिए हम रंजीदा हो जाएं कि हमारी भी अनकरीब मौत की खबर मशहूर होने वाली है। किसी तख्ता उठाने वाले गस्साल को देखकर काश हमारे आंसू छलक पड़े कि अनकरीब हमारे लिए भी गस्साल तख्ता उठाकर आएगा, हमें गुस्ल दिया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा। किसी की नमाजे जनाजा पढ़ते हुए ऐ काश ये एहसास हमें भी हो कि अनकरीब हमारी भी नमाजे जनाजा अदा की जाएगी, और ये भी पता नहीं मुयस्सर आएगा या नहीं आएगा। वरना मौत का अगरचे यकीन है मगर कफन का कोई भरोसा नहीं। मारकर झाड़ियों में फेंक आए, कुत्ते खा गए, क्या भरोसा। किसी का जनाजा उठता देखकर काश ये एहसास हो जाए कि हमारा जनाजा भी अनकरीब उठाया जाने वाला है, किसी को कब्र में उतारा जा रहा हो। ऐ काश इस दहशत से हमारी हिचकियां बंध जाएं कि जिस तरह आज इस तंगो तारीख गड्ढे में इसको पकड़ के उतारा जा रहा है, अनकरीब मुझे भी उतारा जाएगा। एक बुजुर्ग का वाकया है, दफन करने के लिए लोग जमा थे, आप कब्र के किनारे बैठे थे और बैठे बैठे सोच रहे थे कि ये कब्र की गहराई इतनी, लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, इसमें कोई बिछोना नहीं, तकिया भी नहीं, तो क्या मुझे भी इसी तरह के गड्ढे में उतरना होगा जहां कोई चादर बिछी भी नहीं होगी, सिरहाने तकिया भी ना रखा होगा, और फिर ऐसे गड्ढे में रखकर मुझे बंद कर दिया जाएगा। ये सोच सोचकर इन पर एकदम दहशत तारी और गश खाकर कब्र में गिर पड़े, और लोगों ने वह मुश्किल घसीट कर निकाला। ये उनकी सोच थी, वो अहलुल्लाह थे, इनकी कब्र यकीनन जन्नत का बाग बनी होगी, मगर हमारी तो कोई गारंटी नहीं है। अपने किरदार पर जब नजर पड़ती है तो वाकई जिन जिन अजाबों की वईदें हमने पढ़ी होती है वही अफआल हमसे सरजद हो रहे होते, तो हमें इसका बदकिस्मती से कोई एहसास नहीं है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि सरकार मदीना सुल्तान बाकरीना करारे कल्बो सीना फैज़े गंजीना साहिब मुअत्तर पसीना बागी से नुज़ूल सकीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब भी जनाजा मुलाहजा फरमाते तो इरशाद फरमाते, चलो हम भी तुम्हारे पीछे आने वाले हैं। हजरत सैयदना मकहूल दिमिश्की
रहमतुल्लाह ताला अलैह जब भी जनाजा देखते तो फरमाते तुम सुबह को जाओ, हम शाम को आ रहे हैं। ये जबरदस्त नसीहत है और गाफिलों की गफलत है। पहला चला जाता है और दूसरा इस हाल में रहता है कि इसमें अक्ल नहीं होती, यानी अपने जाने वाले से कुछ भी इबरत हासिल नहीं करता। हजरत सैयदना अबू अम्र बिन अला फरमाते हैं कि मैं एक बुजुर्ग के पास बैठा हुआ था, वो अशआर लिखवा रहे थे। इतने में एक जनाजा आया तो वो बुजुर्ग फरमाने लगे इन जनाजों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। जनाजों को देखकर इस कदर खौफजदा हो जाते कि मतलब फरमाते इन जनाजों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। इतना आने का खौफ तारी होता इन मानो कर अपनी मौत का कि मेरा भी जनाजा उठेगा। फिर आपने ये अशआर पढ़े अरबी में जिसका तर्जमा जनाजे आते हुए हमें खौफजदा करते हैं मगर जब चले जाते हैं तो हम फिर गाफिल हो जाते हैं। जिस तरह भेड़िए को आता देखकर भेड़ बकरियां खौफजदा हो जाती हैं, लेकिन जब भेड़िया चला जाता तो फिर मजे से वो बेखतर होकर चरने लग जाती हैं, गाफिल हो जाती हैं। इस्लामी भाइयों, यकीनन जनाजा ये खामोश मुबल्लिग है। इसमें ज़हर नसीब के रस्मी तौर पर शिरकत के बजाय इसकी शिरकत को फिक्र आखिरत का जरिया बनाया जाए। जब तक जनाजे में शिरकत रहे खुद इस तसव्वुर में बंदा गुम हो जाए कि ये सब कुछ मेरे साथ जब मामला होगा तो न जाने मुझ पर क्या गुजर रही होगी। और यकीनन ऐसा होना है कि जो भी पैदा हुआ उसने ये रिस्क तो लिया कि उसको मरना पड़ जाएगा। मरे बगैर उसको कोई चारा नहीं, उसका कोई छुटकारा नहीं। लाख रोए तड़पे लेकिन मौत के बचने की कोई सूरत ही नहीं है। मौत एक ऐसा जाम है जिसे हर जानदार ने पीना है। अल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा। मौत एक ऐसा दरवाजा है जिसमें से हर एक को गुजरना है। तो खुशनसीब है वो शख्स कि जो मरने से पहले अपनी मौत की तैयारी करने में कामयाब हो जाता है। मौला मुश्किल कुशा अलीयुल मुर्तजा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम से अर्ज किया गया क्या वजह है कि आप कब्रिस्तान के करीब रिहाइश रखते हैं। इरशाद फरमाया मैं कब्रिस्तान वालों को अच्छा और सच्चा पड़ोसी ख्याल करता हूं जो ज़बानें बंद रखते हैं और आखिरत की याद दिलाते हैं। हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन जामे उल कुरान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब कब्रों को देखते इस कदर रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। आपसे सवाल किया गया कि हुजूर जब आप जन्नत और दोज़ख का जिक्र करते हैं तो रोते नहीं, मगर जब कब्रों पर आपका गुजर होता है तो इस कदर रोते हैं। इरशाद फरमाया मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर इंसान को इससे नजात मिल गई तो बाद वाली आसान है, अगर इससे नजात ना मिली तो बाद वाली इससे सख्त है। हजरत सैयदना मुजाहिद रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं सबसे पहले कब्र इंसान से कहती है मैं कीड़ों मकोड़ों तन्हाई और अंधेरे का घर हूं। मैंने तेरे लिए यह तैयार किया है कि मेरे अंदर कीड़े मकोड़े हैं, तन्हाई है, अंधेरा है। बता तूने मेरे लिए क्या तैयार किया है और मेरे पास क्या लेकर आया है। सैयदना अबू दर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं क्या मैं तुम्हें अपनी मोहताजी का दिन न बता दूं। सुन लो मेरा मोहताजी का दिन वो है जब मुझे अपनी कब्र में तन्हा रख दिया जाएगा। तो सहाबा किराम के खौफ का ये आलम, औलिया किराम के डर का ये अंदाज और एक हम गाफिलों की हालत कि हमें कोई एहसास। साईं भाइयों काश हमें भी एहसास हो जाए दूसरे की मौत, काश हमारे लिए इबरत का सबब बन जाए, दूसरे का जनाजा हमारी इस्लाह का बाइस हो जाए, किसी को कब्र में उतारना हमारे सुधरने का जरिया बन जाए। तो बहरहाल जब भी जनाजे में शिरकत हो तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अपनी मौत पेश नजर रहे। जब भी नमाज जनाजा में शरीक होने का मौका मिले काश हमें अपनी नमाज जनाजा का एहसास बेदार हो। मगर आजकल तो अफसोस कि नमाज जनाजा पढ़ना ही नहीं आती। दुनिया के मामलात तरक्की पर हैं, दुनिया के फनून दुनिया के हुनर तो अक्सर आते हैं लेकिन नमाज जनाजा नहीं आती। इसमें शिरकत के आदाब हमें क्या है। कारोबार के भाव सारे मालूम,
स्कूल कॉलेज का सबक याद, लेकिन शायद कोई मिले। अगर मैं ये कह दूं कि लाखों में शायद कोई ऐसा मिले तो आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। तो गालिबन हजारों में तो शायद ऐसा कोई मिले कि जिसको जनाजे की नमाज के अरकान पता हो कि जनाजे की नमाज के अरकान कितने। मैं सही उलमा हजरात को छोड़कर मैं अवामुन नास की बात कर रहा हूँ कि नमाज जनाजा के अरकान शायद ही किसी को पता हो, जनाजे की नमाज के अरकान कितने। शराइत अपनी जगह पर है, ये भी नहीं मालूम होते, अरकान भी कहाँ मालूम। नीयत शर्त है इसकी, लेकिन नीयत के लिए अल्फाज शर्त नहीं होते। बस ज़हन में ये हो कि मैं इस जनाजे की नमाज पढ़ रहा हूँ, यही काफी है। अल्फाज मतलब ये मशहूर है अवाम में, तो इसमें भी हरज नहीं है कि मैं नियत करता हूँ नमाज जनाजा अदा करने की वास्ते अल्लाह के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के सवाब इस मैयत को पहुंचे। इन जुमलों में भी हरज नहीं है बोलने में, लेकिन ये आम तौर पे याद नहीं रहते लोगों को। अब मैंने बयान किया तो सबको याद तो रहने चले। और अगर मैं कहूं कि नीयत यही है, जैसे लोग यही समझते कि यही नीयत है, तो फिर लोग नमाज पढ़ने से कतराएंगे कि यार अपने को तो नीयत ही नहीं आती, तो शैतान ही नमाज जनाजा से रोक देगा। तो नीयत जहां भी कोई भी इबादत हो, नीयत के लिए जबान से कहना शर्त नहीं है, बस दिल में नीयत हो। रमजान का रोजा रखना है, दिल में नीयत हो कि रमजान का मैं रोजा रख रहा हूं, सहरी कर रहा है जहन में कि मैं मुझे चूंकि कल रोजा रखना है इसलिए मैं सहरी कर रहा हूं, तो ये सहरी बजाते खुद नीयत है। बहरहाल अफजल जबान से नीयत करना है, इसमें कोई शक नहीं। तो नमाज जनाजा के अरकान दो है, ये जहन नशीन कर लीजिए। बल्कि ऐसी बातें लिखने की आदत डालिए ताकि आपको याद रहे। क़य्यदुल इल्मा बिल किताबा, इल्म को लिखकर कैद कर लो। यह अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है। नमाज जनाजा के दो अरकान है, 4 तकबीरें। ये चारों तकबीरें जो ये रुकन है, इसके बगैर नमाज जनाजा दुरुस्त नहीं होगी। और दूसरा रुकन है खड़ा हो। वो कोई अशद मजबूरी हो जिसकी तफसीलात बाहर शरीयत में पढ़कर मालूम की जा सकती है, जब खड़ा होना नामुमकिन हो जाए। वरना यहाँ तो फर्ज नमाज में भी लोग बैठे बैठे नमाज पढ़ते हैं। वैसे गप्पे मारने के लिए घंटों खड़े रहेंगे, नमाज का टाइम आएगा तो बैठ जाएंगे कि मुझे बुखार आ गया है, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। तो फर्ज नमाज में क़ियाम जो है ये फर्ज है, खड़ा होना लाज़िम। यहाँ तक कि अगर कोई खादिम है पकड़ के खड़ा रखे और तकबीर कहने की अब ताकत है, खड़े हो गए, कोई पकड़ के रखा है, या दीवार पर टेक लगाकर खड़ा होना मुमकिन है, या लकड़ी या असा के टेक पर खड़ा होना मुमकिन है, जब भी फर्ज नमाज के लिए खड़ा होना लाजिम। और अब ठीक है तकबीर तहरीमा कहकर अब खड़े होने की ताकत नहीं तो बैठ सकता है, वरना कम अज कम अशद मजबूरी में भी तकबीर तहरीमा की हद तक तो खड़ा रहे। अब इतनी भी ताकत नहीं है, मुमकिन ही नहीं है खड़ा होना, तो अब बैठकर भी पढ़ सकता है। बैठने की ताकत नहीं, लेट कर पढ़ना, ये फिर इसके मजीद अहकाम। तो नमाज जनाजा में भी खड़ा होना क़ियाम जिसको कहते हैं ये रुकन है इसका। और 4 तकबीरें, चारों तकबीरें रुकन है। पहली तकबीर जिसको हम तकबीर तहरीमा कहते हैं, तो पहली तकबीर कहने के बाद सना पढ़ी जाती है। नमाज की सना और जनाजे की सना में थोड़ा सा फर्क, लेकिन ये बता दूं कि मुतलकन अल्लाह ताला की सना दुरूद शरीफ, सना दुरूद शरीफ और मय्यत के लिए दुआ, ये तीनों काम जो है ये सुन्नतुल मुअक्कदा है नमाज जनाजा में। सना, दुरूद शरीफ कोई सा भी, और मय्यत के लिए दुआ, ये 3 सुन्नतुल मुअक्कदा। तो पहले तकबीर कहेंगे, इसमें जमाअत शर्त नहीं है, एक शख्स भी है तो वो जनाजा अगर पढ़ ले तो काफी है। जमात से पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, मगर ये कि अगर कोई ना मिले तो एक आदमी भी पढ़ेगा तो फर्ज किफाया अदा हो जाएगा। तो नमाज जनाजा जो फर्ज किफाया, तो कुछ लोग पढ़ लें तो सबसे साकित हो जाएगा। तो तकबीर तहरीमा कहने के बाद हस्बे मामूल नाप के नीचे हाथ बांधे जाएंगे और सना पढ़ेंगे। तो नमाज की सना में और जनाजे की नमाज की सना में थोड़ा सा फर्क। नमाज में हम सना पढ़ते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, और जनाजे की सना में जो है उसमें वला इलाहा गैरुक से पहले आएगा व जल्ला सनाउका, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक व जल्ला सनाउका, ये जायद। चलो याद नहीं है तो सना तो नमाज वाली भी चल जाएगी। तो सना पढ़कर फिर अब तकबीर कही जाएगी। तो अब कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें, सुन्नतुल मुअक्कदा अदा हो जाएगी। अफजल यह है कि नमाज में जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिम, ये दुरूद पढ़ा जाए, दुरूद इब्राहिम पढ़ा जाए। इसके बाद
اب پھر تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، تو جنازے کی دعا پڑھیں گے۔ اب جنازے کی دعا بھی پتہ نہیں کس کس کو یاد ہوگی۔ بالغ کی الگ دعا ہے، نابالغ بچے کی الگ دعا ہے، نابالغہ بچی کی الگ دعا ہے۔ اب یہاں تو اجتماع کی دعوت دو تو بولتے ہیں کہ بھئی پانچوں ٹائم نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، روزی کمانا عبادت ہے، یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں بعض لوگ کیا کیا فلسفہ جھاڑتے، آتا جاتا کچھ بھی نہیں۔ تو اب یہ کہ پھر دعائیں کہاں یاد کریں گے؟ تو بھئی وہ فیضان مدینہ میں چلو، وہاں دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں۔ تو اجتماع کے بعد حلقے لگتے ہیں نا، اس میں دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑی، پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے تھے، اب ہاتھ اٹھانا نہیں ہے عید کی نماز کی طرح، بس پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے تھے۔ تو پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑی، دوسری تکبیر کہی، درود شریف افضل تھا کہ درود ابراہیم پڑھا، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا کی، یہ بھی سنت المؤکدہ۔ اب چوتھی تکبیر کہی گئی، چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ کھول دینے۔ اب یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، اکثر لوگ ہاتھ باندھے رہتے ہیں، سلام بھی ہاتھ باندھ کر پھیرتے ہیں، اور بعض لوگوں کا تو یہ بھی فلسفہ دیکھا میں نے کہ جب ایک سلام پھیرتے ہیں تو سیدھا ہاتھ کھولتے ہیں، دوسرا سلام پھیرتے ہیں تو الٹا ہاتھ کھولتے ہیں، پتہ نہیں کہاں ان لوگوں نے پڑھ لیا۔ بس وہ دیکھا دیکھی بھیڑ چال، مطالعہ کرتا نہیں کوئی، بیان سنتے نہیں ہے، بیان سننے آتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، تو ان کو یاد تو رہتا نہیں۔ تو اب جنازے کی دعا پڑھ کر جب اللہ اکبر کہا جائے گا تو فوراً ہاتھ کھول دیں، اب ہاتھ باندھ کر رکھنے کا موقع نہیں ہے، اور اب سلام پھیریں گے امام کے ساتھ۔ تو اس طرح مطلب جنازے کی نماز پوری ہوئی۔ اب یہ کہ اس طرح کے بہت سارے احکامات ہوتے ہیں کہ جو آدمی ذاتی طور پر مطالعہ کر کے سیکھ سکتے، یا اچھی صحبت میں مدنی ماحول میں رہ کر بہت ساری باتیں، بہت سارے احکام، بہت ساری سنتیں بندے کو سیکھنے کو ملتی۔ جنازوں کو کندھا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سیدھا کندھا میت کے سیدھے ہاتھ سے سیدھا کندھا دے کر 10 قدم چلیے، پھر پیچھے ہٹ کر میت کے سیدھے پاؤں کو سیدھا کندھا دیں، 10 قدم چلیے، پھر میت کے الٹے ہاتھ پر آ جائیے اور اپنے الٹے کندھے پر لے کر 10 قدم چلیے، پھر پیچھے ہٹ کر میت کے الٹے پاؤں پر آ جائیں اور اپنے الٹے کندھے پر لے کر اس کو 10 قدم چلیں۔ یہ ہے سنت، اس طرح 10 قدم چلنا چاہیے۔ تو چاروں پایوں کو لے کر 10 قدم چلنے والے کے بحکم حدیث 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو میت کو لے کر 40 قدم چلے تو انشاءاللہ 40 کبیرہ گناہ اس کے معاف ہوں گے۔ ایک حدیث کے مطابق جو کسی کے جنازے کو چاروں پایوں کو کندھا دے، اس کی حتمی یعنی پکی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت ہیں، بہرحال جتنا ہو سکے مطلب سنت کے مطابق ہو تو زہ نصیب۔ اور پھر ایک بار دوہرا دوں کہ جب بھی جنازے میں شرکت ہو تو بس یہی سمجھیں کہ یہ خاموش مبلغ ہے، اور یہ ہمیں مطلب یعنی کہ سمجھا رہا ہے کہ جس طرح مجھے اٹھا کر لے چلیں تمہیں بھی اندھیری قبر کی طرف اٹھا کر لوگ چل دیں گے، تو تم بھی اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اللہ کرے کہ اس جنازے کی خاموش تبلیغ اور اس جنازے کا خاموش بیان ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہمارے لیے بھی عبرت کا سامان ہو۔ شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول